Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, most of you have already uploaded your admit card, and there are two unique points this time on which some of you are asking, Sir, please explain what is the meaning of this. Now, this is post COVID examination where some modifications they have done. First is they have asked each and every candidate to bring own ink stamp pad. The purpose of this stamp pad is that you have to put a thumb impression at a place on a admit card. So for your security, they are asking you bring your own pad so that there is no risk of transmission of COVID from one person to another. So take care of this condition. You can easily buy such type of ink stamp pad from any stationery shop. Second is they said don't change your appearance from the photograph uploaded in your admit card. The reason is now since they may not be taking any biometrics, I think instead of biometrics they will rely on your photograph and IRIS. So sometimes when your photo and the photo which is already uploaded in admit card, if there is a material difference, it may show mismatch. So to avoid mismatch, it is necessary don't make any changes in your appearance. That is what they are asking for. So after this video, there may be so many queries. So I will advise you, if you have any query, direct these query to State Bank of India call center, because they are the only competent authority who can answer your questions. So whatever is given in the admit card, I am simply making it clear to you so that you take advantage of it. Besides this, you should focus on your studies. For your advantage, for next 7-8 days, I will be uploading one video daily how you should prepare for SBI Junior Associate Main. And if you follow that schedule, it is going to help you. The schedule will have changes from day-to-day basis based on requirement of that day. So if you follow that schedule, it is going to help you, because we have to focus on each and every subject. Every subject is important. We can't neglect English, we can't neglect quant, we can't neglect reasoning, we can't neglect general awareness. But yes, there can be some subject where if we over focus or over emphasize, that can give us lead over others. Because this is a world of competition. We have to understand where our competitor is strong and where he or she is weak. So if we make ourselves strong on weak areas of others, like English, most people are weak in English. So if you can improve in English, you are getting advantage over others if your quant and reasoning is of that same level. Okay? So you have to understand, say a person is weak in current affairs and you are strong in current affairs and your level of quant and reasoning is same as your competitor. Who will win? Who is better in current affairs? Who is better in English? So that is the advantage one can take. When we are equal in two subjects, the other two subjects can give us lead. And that is called management. How we should manage our exam. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI मेन का जो एडमिट कार्ड है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं. पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपना इंक स्टैम्प पैड लेके जाना है. इंक स्टैम्प पैड का मतलब होता है वो स्टैम्प पैड जिससे हम मोहर लगाते हैं. ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगा. ये इसलिए चाहिए कि जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो एडमिट कार्ड पे लगना है.
और कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें यदि किसी के थंब पहले लगा हुआ है और आपने उस पर थंब लगाया तो चांस होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला। इसी तरीके से बायोमेट्रिक के बदले उन्होंने नई डिवाइस निकाली है कि आपकी फोटोग्राफ की चेकिंग होगी और IRIS लिया जाएगा। अब इनका एडवांटेज ये है कि ये एक दूसरी टेक्निक है जिसके थ्रू जेन्युइन पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोगों ने अपनी फ़ोटो लगाई है तो वो जो उनकी अपीयरेंस है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना करें, कोई भी चेंजेस ना करें, क्योंकि क्या होगा, वो तो कंप्यूटर से मैच होना है। तो यदि उस दिन फ़ोटोग्राफ ली गई और पुरानी फ़ोटो में अपीयरेंस कुछ और है तो वो मिसमैच भी कर सकता है और इससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने अपीयरेंस को ना चेंज करें, ये सलाह इस एडमिट कार्ड में दी गई है। तो इसको भी हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हमने ये 2 पॉइंट्स को कवर कर दिया, अब फ्लड ऑफ क्वेरीज आ जाएगा इसके ऊपर। नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं इस तरह की वीडियोस को, क्योंकि इसमें जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो केवल आपको SBI का कॉल सेंटर दे सकता है। तो ये कोई भी आपकी क्वेरी है एडमिट कार्ड से संबंधित या इस तरह के चीज़ों से संबंधित, अगर आप डायरेक्ट उनको अप्रोच करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत कि हम इधर उधर से उसकी क्लैरिफिकेशन लेना चाहें। साथ ही मेरी आपको ये सलाह है कि एग्ज़ाम पे फोकस बनाए रखें। आपकी मदद के लिए जितने भी बचे हुए दिन हैं 8-9 दिन, उसमें हम डेली एक वीडियो इस चैनल पर डालेंगे जिसमें उस दिन का शेड्यूल आपको बताया जाएगा। अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी में आपको मदद मिलेगी। अब हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में हमें अच्छा होना जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट पे ओवर फोकस कर लें, बाकी सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर दें। पर हाँ, ये जरूरी है कि एक कंपटीशन के दौर में यदि हमें पता हो कि अधिकांश कंपटीटर्स किस चीज़ में वीक हैं और उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारा एज जरूर बन जाता है। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि आप भी क्वांट और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हैं और आपका कंपटीटर भी क्वांट और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है, पर आप इंग्लिश में भी स्ट्रॉन्ग है, वो इंग्लिश में वीक है। तो कौन जीतेगा, जो 2 सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है या जो 3 सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है? इसी तरीके से दूसरा कैंडिडेट क्वांट और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है, आप भी क्वांट और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है, मगर दूसरे का करंट अफेयर वीक है, आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपका 3 एरिया स्ट्रॉन्ग है, उसके 2 एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो कौन जीतेगा? जिसके 3 एरिया स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से यदि आप चारों एरिया स्ट्रॉन्ग कर लो और दूसरे व्यक्तियों के 2 या 3 एरिया स्ट्रॉन्ग है, तो कौन जीतेगा? जिसके 4 एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए हम आपको उन एरियाज को फोकस ज़्यादा करने के लिए कहते हैं जहां अधिकांश लोग वीक हैं। अधिकांश लोग किस में वीक हैं? इंग्लिश में। अधिकांश लोग किस में वीक हैं? करंट अफेयर्स में। इनको फोकस करने से हमें फ़ायदा होता है। अधिकांश लोग रीजनिंग और क्वांट में स्ट्रांग ही होते हैं, तभी वो प्रीम निकाल के आते हैं। जो प्री लेवल का एग्ज़ाम जो निकाल के आ रहा है, तो मान के ही चलिए कि आपका रीजनिंग और क्वांट स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पे तीसरा पेपर सिर्फ इंग्लिश ही है। पर यदि आपकी इंग्लिश वीक है और करंट अफेयर वीक है, ये तो पता इसी मेन के पेपर में लगेगा ना। तो यदि हम इसको स्ट्रांग कर लेते हैं तो हमें एडवांटेज मिलता है। तो हमें अपने कंपटीटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए, तो हम कंपटीशन को मैनेज कर सकते हैं। ये एडवांटेज होता है राइट एडवाइस एट राइट टाइम का। गॉड ब्लेस यू ऑल।